वरंगल में आने वाले असम्बली इंतखाबात को मलूज रखते हुए रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रामाराव वरंगल के दौरे पर हैं। उन्होंने मौजे रामपुर में घरों को रोजाना पानी फराहम करने की स्कीम का इफ्तिताह किया और बताया कि उगादी से हर घर को अब बिला नागा पानी मिला करेगा। 8 लाख लीटर वाला ओवरहेड तामीर किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पूरी रियासत में पानी की स्कीम पर 1589 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उसका मकसद है कि 2048 तक शहरियों की पानी की जरूरत को पूरा कर दिया जाए। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिशापेट में डबल बेडरूम मकानात का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव, वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर, चीफ विप डी विनय भास्कर, पार्टी के कई अरकान असम्बली और कौंसिल की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बालापुर के एक फंक्शन हॉल में बदंगापेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मीरपेट और जलपल्ली बदियात के तहत 217 दरखास्त गुजारों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि हुकूमत का मंशा है कि वालिदीन पर बेटियों की शादी का बोझ न पड़े। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान बालापुर डिवीजन में 30 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए जा चुके हैं। इस तकरीब में बदंगापेट के मेयर बी नरसिंह रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शाकिर, मुकामी मंडल रेवेन्यू ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी कॉर्पोरेटर्स के अलावा टीआरएस के सरकर्दा कायदीन भी शरीक थे। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆడబిడ్డల పెళ్లిళ్ళకి ఆసరగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కళ్యాణ లక్ష్మి రూపంలో ప్రతి ఆడబిడ్డ పెళ్లికి చెక్ రూపంలో అందించడం జరుగుతూ ఉంది. గతంలో 50,000 ఇచ్చిన అమౌంట్కి సరిపోదని, పరిస్థితులు మారినాయి, ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటాయనే ఆలోచనతో ₹1,00,000 చేసిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిది. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్థికంగా ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందిగా ఉన్న పేదలకు అందాల్సిన కళ్యాణ లక్ష్మి పథకంలో మాత్రం ఎక్కడ కూడా డిలే జరగొద్దనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ ఈరోజు మన బడంపేట కార్పొరేషన్లో ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపుగా 91 మందికి ఈరోజు చెక్కులు అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీర్పేటలో 86, జల్పల్లిలో కూడా అందించబోతా ఉన్నాం. 2 డేస్ తర్వాత మొత్తం కలిపితే 217 చెక్స్ ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. నిజంగానే ఆడబిడ్డ ఉందంటే గుండె మీద కుంపట అనుకునేవాళ్ళు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆడబిడ్డ పుట్టిందంటే లక్ష్మి పుట్టింది ఇంట్లోనే లెవెల్. ఎందుకంటే పుట్టగానే ₹1,00,000 ఆమె పేరు మీద డిపాజిట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఈరోజు ఆ విధంగా భావిస్తూ ఉన్నారు. మరొక్కసారి అందరి తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఇదే కాదు, ఆడబిడ్డ ప్రెగ్నెంట్ అవుతే వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కోసం కూడా ప్రతి నెల వెళ్ళి చెక్ చేయించుకోవడానికి కానీ, వాళ్ళ డెలివరీకి వెళ్తే తీసుకెళ్ళడానికి కానీ, మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర వదలడానికి కానీ 102 అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఆ సర్వీస్ ద్వారా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కూడా వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు ఆడబిడ్డ పుడితే 13,000, అబ్బాయి పుడితే 12,000 లాంటి కార్యక్రమాలు దేశంలో ఎక్కడైనా తీసుకుందంటే అదొక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అని తెలియజేసుకుంటూ, ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి వల్ల సామాజిక రుగ్మత అంటే బస్సులు నిండిన తర్వాత పెళ్లిళ్ళు చేయడం అనేది, పిల్లలను చదివించడం అనేది, గురుకులాల ఏర్పాటుతో పేద పిల్లలందరినీ చదివించాలనేది, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు కూడా సామాజికంగా ఇబ్బంది లేకుండా ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఎదిగేటట్టు చేసే కార్యక్రమాలలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న దాంట్లో కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ ప్రత్యేకత సంతరించుకుందని తెలియజేసుకుంటూ, ఈ 2 సంవత్సరాలు ఒక్క బాలాపూర్ మండలంలోనే నా దగ్గర ఉన్న 4 మండల్స్ రెవెన్యూ మండల్స్ 3,165 మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇంచుమించు 31,65,00,000 ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి రూపంలో అందించడం జరుగుతూ ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆడబిడ్డల పట్ల, సమాజంలో ఉన్న ఈ సమస్య పట్ల సంపూర్ణ అవగాహనతో ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ వల్ల చాలామంది ఆడబిడ్డలందరూ ఒక సోదరునిగా ముఖ్యమంత్రి గారికి అందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తున్న, ఒక మేనమామగా ఈరోజు చెక్ పంపిస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అందరూ కూడా అండగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరికీ కూడా, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సంవత్సరమైన ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి మనం అందరం బయటపడేట్టు ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించాలని కోరుతాము. हालिया अरसे में करोड़ों रुपए मालियत अहम वक्फ जायदादों से मुताल्लिक मुकदमात में वक्फ बोर्ड की शिकस्त पर मुस्लिम बिरादरी में ज़बरदस्त बेचैनी पाई जाती है। वक्फ बोर्ड के जानिब से मुकदमात की पैरवी के लिए एक मखसूस वकील को ही फौकियत दिए जाने पर वक्फ बोर्ड हुक्काम की नीयत पर शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इनको सुपुर्द करदा मुकदमात में वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसले सदीर हुए हैं। वक्फ उमूर पर गहरी नज़र रखने वालों का कहना है कि एक आला सतह तहकीकात होनी चाहिए कि इसके पास पर्दा क्यों मुहर्रिकात हैं और इस मामले में वक्फ बोर्ड के हुक्काम और मेंबरान का क्या रोल है। एक अंदाजे के मुताबिक औकाफी जायदादों से मुताल्लिक मुख्तलिफ अदलिया में 2000 से ज़ायद
मुकदमात ज़ेरे दौरान हैं, जिसके लिए सिर्फ 9 वकला की खिदमत हासिल की जा रही है। वक्फ बोर्ड के कानूनी सेक्शन को फ़ाल बनाने और निगरान कार मैकेनिज्म बनाने की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है। इस खुसूस में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम सिलसिलेवार इजलास तलब कर रहे हैं। आज जो वक्फ बोर्ड में जो लीगल मीटिंग लिए हम लोग, केसेस हमारे बास केसेस जो है, क्यों हम लोग हारे, क्यों ऐसा हुआ बोल के जो है, सालार औलिया का है, बास केसेस बड़े ज़मीनों के हैं, तो स्टैंडिंग काउंसिल्स को बुला के हमारे लॉ ऑफिसरों के साथ और हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, एडवोकेट्स मैडम और हमारे भाई साहब और हमारे हैदर आगा, ये एक 3 मेंबर्स और कुछ मेंबर्स नहीं आए, तो मीटिंग लिए, फिर उसको पोस्टपोन करें, उसको सैटरडे के दिन इंशाल्लाह ताला पूरे डिटेल में करेंगे। हम लोग भी जो है यहाँ अगर आ रहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील को जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सैटरडे को मीटिंग ये करके बड़े से बड़े एडवोकेटों को रख के जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लगा के हमारी चीज़ हासिल कैसा करना है हम बराबर करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, टेम्पररी खुश हो जाना कोई भी कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है जीत लिए बल्कि नहीं जीत सकते वैसा, क्योंकि आपको दूसरी तरफ से अल्लाह की मार भी रहती और उसमें खैर बरकत भी नहीं रहती आपको, और अल्लाह चाहे तो वक्फ प्रॉपर्टी कोई डैमेज नहीं कर सकता। फिलौकत कुछ भी गलत बाहर करके कोर्ट को कुछ भी डुप्लीकेट पेपर सबमिट करके जो ना आप लोग कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं, मगर इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत के लेके आएंगे इंशाल्लाह। सब अभी कितने वकला की टीम है आपके पास, या ये मीटिंग में कुछ नए वकला को जो है ज्वाइन करेंगे टीम में? नहीं, वकला तो हमारे पास जैसा थे उसमें बढ़ाए भी हम लोग, और सीनियर एडवोकेट्स को भी हम लोग लेते हैं वहाँ पर, एडिशनल लॉयर्स को जो है हमारे तरफ से सीनियर एडवोकेट को भी रखेंगे हम, और भी सीनियर जितने सीनियर हैं हम लोग बुलाएंगे उसको। साहब, सुनने में आ रहा है कि जो है जो केसेस फाइल कर रहे हैं आपके वकला जो है उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हैं बोल के सुनने में आ रहा है। वैसा अगर मालूम हुआ तो उसको इमीडिएट हम लोग सस्पेंड करेंगे, कोई भी रहो। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने नागार्जुना सागर संभाल इलाके के ज़िमनी चुनाव के लिए अनमोला मंडल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया और पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर की तरक्की सिर्फ टीआरएस हुकूमत के दौर में मुमकिन है। श्रीनिवास यादव ने साबिक वजीर और कांग्रेस के उम्मीदवार के जाना रेड्डी से पूछा कि उन्होंने जब वो रुकने संभली थे तो नागार्जुना सागर की तरक्की के लिए क्या काम अंजाम दिए। उनके हमरा टीआरएस उम्मीदवार नमूला भगत और पार्टी के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के में 17 अप्रैल को रायदही मुकर्रर है। रमजान की आमद से कबल शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में साफ सफाई और आग पाशी का काम तेजी के साथ जारी है और तवक्को है कि ये 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। इस मस्जिद में 10,000 अफराद के बैक वक्त बाजमात नमाज अदा करने की गुंजाइश है। इफ्तार के मौका पर इस मस्जिद में बड़ी गहमा गहमी देखी जाती है। न सिर्फ मुकामी अफराद बल्कि सयाहत और पुराने शहर में खरीदारी के लिए आने वालों की बड़ी तादाद इफ्तार में शरीक होती है। चार मीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने फिर एक बार मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को जारी कामों की जल्द से जल्द तकमील की हिदायत दी। आज जैसा कि इससे 2 दिन कबल भी मक्का मस्जिद के कामों का मुआयना किया गया था, चूँकि बिल्कुल अब माह रमज़ान कल शाम से शुरू होने वाला है, आज फिर एक मरतबा यहाँ का दौरा किया गया। यहाँ पर अभी थोड़े से काम बाकी हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह काम मुकम्मल होने के लिए अभी 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, जो काम के कंट्रैक्टर्स हैं, उनको कहे कि आप ये तमाम काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। और आज हमारे इस दौरे के अंदर हमारे गौस भाई कारपोरेटर जो हैं वो बिदर में इलेक्शन होने की वजह से वहाँ पर मसरूफ़ हैं। उनके फ़र्जंद साहिल अकबर हमारे साथ हैं और हमारे मोहतमीम साहब भी जो पुलिस के एक आला अहदेदार थे, मैं मोहतमीम साहब से भी बरसा बरस से वाकिफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से बड़ी दियानतदारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे इब्तदाई के ज़िम्मेदारान तमाम हमारे साथ हैं। यहाँ पर हाउस का थोड़ा सा काम बाकी है और जो यहाँ टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए तकरीबन मुकम्मल है। उस सामने के काम की फ्लोरिंग का एस्टीमेट नहीं है। मैं हमारे जो बल्दिया के ज़िम्मेदार हैं उनसे कहा कि उसके एस्टीमेट बनाइए। मैं बल्दिया के आले अहदेदारों को बोलकर मैं जल्द से जल्द मंजूर करवाऊँगा। अगर हो सका तो इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान के अंदर ही, जब भी 10, 15, 20 रमज़ान तक वो फ्लोरिंग करवाने की कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का काम भी हो रहा है और जो मक्का मस्जिद के
मेन बिल्डिंग के सामने जो हर साल जो नमाजियों के लिए शेड डाला जाता है, चूँकि हमेशा रमज़ान माह गर्मा के अंदर आ रहा है, शिद्दत की गर्मी है, उसी वजह से सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर यहाँ पर शेड की मंजूरी अमल में आई और वो शेड का काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह कल तक वो शेड का काम भी मुकम्मल हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जो भी छोटे छोटे काम हैं उसको करवाने के लिए हम सारे के सारे लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जितना जल्द हो सका करेंगे। लेकिन मेरी अदबन जो भी नमाज के लिए जो मुसल्लियान मस्जिद को आएंगे उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप अपने साथ जानिमाज़ लाइए और मास्क लगाइए और घर से वज़ू बना कर आइए और मस्जिद के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट बोलने दीजिए या मत बोलने दीजिए, अपने को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मर्ज़ बड़ा तेज़ी के साथ यहाँ पर फैल रहा है। तो मेरी तमाम मुसल्लियान से फिर एक मरतबा मेरी गुजारिश है कि जानिमाज़ हर किसी के मकान के अंदर काफ़ी जानिमाज़ें हैं, जो भी मस्जिद में नमाज के लिए आ रहे हैं अपना जानिमाज़ लाइए और मास्क लाजिम है। जो भी शख्स मास्क लगाए बगैर मस्जिद के अंदर आएगा इंशाअल्लाह ताला जो भी यहाँ पे पुलिस की जो पिकेट्स बैठी हुई है और मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कहकर बगैर मास्क के मस्जिद से सख्ती के साथ बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर एक बार इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला माह रमज़ान शुरू हो रहा है। मैं तमाम अहलियान मुसलमानों को माह रमज़ान और मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे माह रमज़ान के रोज़ों को, नमाज़ों को, इबादतों को कबूल फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। रमज़ान शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गया है, मगर मुसलमानों में इस बात की तशवीश पाई जाती है कि इस बार मसाजिद में तरावी होगी या नहीं। इस तशवीश को दूर करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने INDTD के नुमाइंदे खास से बात करते हुए बताया कि फिलवक्त तरावी में कोई रुकावट नहीं है, लोग मसाजिद में तरावी पढ़ सकते हैं, तावक्त ये कि हुकूमत के जानिब से इसके बरखिलाफ कोई अहकाम जारी ना हो। हर साल की तरह इस साल भी जो है रमज़ान के इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे इंतज़ाम हैं, क्योंकि मीटिंग नहीं हुई बल्कि नहीं मगर CM साहब KTR साहब ऑलरेडी जो है ना मॉनिटर करके जो है ना मोबाइल ट्रांसफार्म और हमारे करंट बनने होना बोल के KCR साहब भी जो है ना वो तो आज भी करंट बनने हो रहा, वाटर का भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होना बोल के वाटर वर्क्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए और बल्दिया को भी जो है साफ़ सफाई के लिए ये करें। और जो आपके वाटर वर्क्स भी जो है ना जैसा बास एरियो में पानी नहीं आ रहा तो वहाँ पर टैंकरों से पानी सप्लाई करना बोल के ऑलरेडी जो है KCR साहब मीटिंग के अलावा भी जो है ना उन्होंने पर्सनल जो है ना ये करके पूरा मॉनिटर करके रमज़ान में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, पब्लिक को जो सहूलत पहुँच सकती साफ़ सफाई और जो है ना वाटर की, करंट की जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान पीसफुल रहेगा और हंसी खुशी से खुशी खुर्रम रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ऑलरेडी जो है हम लोग भी जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से भी मैं पूरे कमिश्नर बल्दिया को, कमिश्नर पुलिस को और हमारे वाटर वर्क्स को हर डिपार्टमेंट को हम भी हमारे तरफ से भी वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिदों में सहूलत जो भी प्रॉब्लम है मस्जिदों के पास इंशाल्लाह ताला साफ़ सफाई का इंतज़ाम, पानी का कोई भी चीज़ की कमी नहीं होना, बल्कि हम लोग भी एक यहाँ से हमारे तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शन रहेगा। पूरे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली इंतज़ाम और गवर्नमेंट खुद मॉनिटर कर रही है और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के आएंगे नमाज के लिए उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ इंडिया में जैसा है यहाँ पर भी अच्छे से अच्छा इंतज़ाम रहेगा। मगर मेरी एक अपील है आवाम से कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाइए आप लोग और एकदम बाजू ठहर के नमाज जैसा पढ़ते वैसा मत करिए। एक मुसल्ली की जगह कम से कम 1 मीटर छोड़ना है, मगर एक मुसल्ली की तो जगह छोड़ के आप लोग नमाज पढ़िए आप लोग, और नमाज को कोई रोकते नहीं। जैसा झुम्मड़ जमा होती वैसा नहीं होना चाहिए। और सुन्नता जो है ना घर में पढ़ के जो है ना फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ के इमीडिएट घर चले जा सकते हैं। और आप लोग खुद जो है ना पर्सनली जो है मस्जिदों में जो है ना भीड़ भाड़ मत लगाइए, नमाज आप पढ़िए, अच्छे तरीके से नमाज पढ़िए। तरावी भी जैसा गवर्नमेंट के गाइडलाइंस जैसा भी आएंगे मगर तरावी भी होंगी इंशाल्लाह ताला।
इससे पहले लॉकडाउन में भी तरावियाँ हुए मस्जिदों में, उसी तरीके से जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तरावी पढ़िए आप। फिर अगर गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस आए तो फिर जब हम बताएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट पूरा आवाम के साथ है, पब्लिक के साथ है, और गवर्नमेंट की तरफ से केसीआर साहब की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पीसफुल रहिए, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई पुलिस आपको हरासमेंट नहीं करेगी, पुलिस भी आपके साथ है, पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। और वक्फ बोर्ड भी जो है ना कोई चीज़ की कमी है तो वक्फ बोर्ड से भी रुजू होइए आप, पानी की कमी है, कोई भी वाटर की कोई भी चीज़ का ये है तो वक्फ बोर्ड में भी आके आप इतला दे सकते हैं आप। और एक सेल भी बनाने का प्रोग्राम है मेरा, इंशाल्लाह कल या परसों में एक मीटिंग रख के हम लोग उसको भी, कोई भी प्रॉब्लम है मस्जिदों में कुछ है तो वो भी एक सेल बनाएंगे हम लोग। आप लोग जो है ना खुशी खुशम से रमज़ान मनाइए और इबादत करिए, और ये कोरोना वायरस जो है अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपन अल्लाह ताला चाहे तो 1 मिनट में ये कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता, मगर आप लोग भी जो है पाबंदी से नमाज पढ़कर जो है अल्लाह से दुआ करिए ये कोरोना वायरस जो भी बीमारी है इसको खात्मा हो इसका बोल। दोनों शहरों के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं बारिश से मौसम सर्द हो गया। आज सुबह से ये मतला बरालूद था। YSMC का अमला जो मौके में मौसमियात की पेशकशी के बाद मुतहरिक हो चुका था, सड़कों पर निकल आया और पानी की निकासी का काम अंजाम दिया। शहर के चंद इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश ने तो ट्रैफिक का मसला भी खड़ा कर दिया था, क्योंकि सड़कों पर काफ़ी पानी जमा हो गया था। बल्दी अमले को पानी की निकासी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासत में गुज़श्ता एक हफ्ते से गर्मी की शदीद लहर चल रही थी। रमजान से कबल मौसम की अचानक तब्दीली पैम नवीद साबित हो रही है। मलकाजगिरी में 154 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। रुकनी असम्बली M हनुमंतराव और कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने इसका इफ्तिताह किया। महेश भगवत ने बताया कि एक CCTV कैमरा 100 पुलिस वालों पर भारी होता है। उन्होंने बताया कि 60 से 70% केसेस के हल करने में CCTV कैमरे अहम हिस्सा अदा कर रहे हैं। M हनुमंतराव ने कहा कि वो गरीब कॉलोनियों में अपने खर्चे से कैमरे लगाएंगे। जमा చేసి ఈ రోజు ఈ 154 కమ్యూనిటీ CCTV కెమెరాస్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది। చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్। ఇన్స్పెక్టర్ మన మల్కాజ్గిరి జగదీష్ వాళ్ళ టీమ్ కి, సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్ ACP DCP వాళ్ళకి కూడా అభినందనలు। స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మన ఎమ్మెల్యే గారు। ఎమ్మెల్యే ఫండ్ నుంచి 10 లక్షల రూపాయలు ఈ కెమెరాలో కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి। ఇక్కడ ఉన్న షాప్ ఓనర్స్ కూడా 25 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ డొనేట్ చేశారు। తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ వాళ్ళు 3.5 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళు కూడా డొనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు ఒక కెమెరా అంటే 100 పోలీస్కి సమానంగా। ఈ కెమెరా మనం ఎప్పుడు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు అప్పటి నుంచి మా నేరాలు బాగానే తగ్గినాయి। ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు నేను చెప్పారు 2008లో నేను మల్కాజ్గిరి DCP ఉన్నప్పుడు 1 గంట సేపులో 8-9 చైన్ స్నాచింగ్ అయిన వాళ్ళు। అది ఎలా కంట్రోల్ చేయాలా అప్పుడు పెద్ద సవాల్గా మారింది। సో మన బాధితులు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సంజాయించడం, మళ్ళీ కేసెస్ డిటెక్ట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ బంగారం వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయడం, అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా పెట్టారు। మాత్రం ఇది చైన్ స్నాచింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫస్ట్ కోపం పోలీస్ వాళ్ళ మీద। పోలీస్ వాళ్ళు కనపడట్లేదు। అదే పోలీస్ వాళ్ళు సంఖ్య ఎంత ఉంది? మన దేశంలో 1 lakh పాపులేషన్కి 240 పోలీస్ వాళ్ళు కావాలా? మన దేశంలో ప్రస్తుతం 140 పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు। 100 పోలీస్ ప్రతి లక్ష జనాభాకి కొరత ఉంది। ఇప్పుడు 24/7 అన్ని చోట్ల పోలీసులు ఉండడం కష్టం। ఈ పోలీస్ పని ఇప్పుడు ఈ కెమెరా చేస్తున్నాయి। మీరు చెప్పండి లాస్ట్ చైన్ స్నాచింగ్ ఎప్పుడు అయింది ఈ ఏరియాలో? నాకు దృష్టిలో లేదు। ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఒక చైన్ స్నాచింగ్ కూడా మల్కాజ్గిరిలో అయినట్లు నా దృష్టికి రాలేదు। నేను జాయిన్ అయినారు 2016 1 జూలై రోజు। అదే నెలలో ఇక్కడ మల్కాజ్గిరి ఏరియాలో చాలా అది మంచి పౌచ్ కార్ ఎవరు ఇంటి బయట పెట్టున్నారు, అది రాత్రి ఎవరైనా తగలు పెట్టున్నారు అని అప్పుడు సమాచారం వచ్చింది। ఆ సమాచారంతో మా పెట్రోల్ వాళ్ళు రాత్రి ఇంకా తనిఖీ చేసినప్పుడు
ఒక పెంటర్ దొరికారు. ఆ పెంటర్ ఎలా దొరికారు అంటే మా వాళ్ళు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చేశారు. ఒక కార్ బర్నింగ్ అయిన తర్వాత మంటలు వస్తున్నాయని మా వాళ్ళు వెళ్ళారు. దగ్గరగా ఆయన పెంటర్ దొరికారు. తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పలేదు అప్పుడు. తర్వాత మన సీసీటీవీ फुटेज मास्क के रिज्यूम से मुताल्लिक रियासत हुकूमत की तरफ से जियो की इजराई के बाद जीएचएमसी अलवार सर्कल के सैनिटेशन इंस्पेक्टर शैलेंद्र रेड्डी की क़यादत में अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम चलाई गई। बल्दी अमले ने अहम चौराहों पर गाड़ी रानों को रोक रोक कर मास्क पहनने की तलकीन की और बताया कि खिलाफ वर्जी करने पर अब 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। ఈరోజు మీరు ప్రతిరోజు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు, 1,00,000 కేసులు దాటిపోతున్నాయి దేశంలో. సో మనం అందరం కూడా ఈరోజు గవర్నమెంట్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశానుసారం మన చీఫ్ సెక్రటరీ సుమేష్ కుమార్ గారు నిన్న ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేశాడు. ఏంటంటే మాస్కులు లేని వాళ్ళు ఎవరున్నా కూడా దయాదాక్షిణ్యం లేకుండా 1000 రూపాయలు పెనాల్టీ వేయండి, ఈ విధంగానైనా వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారని చెప్పేసి ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేశాడు. సో ఈరోజు మేము అల్వాల్లో మాస్కులు లేని వాళ్ళందరికీ ఇప్పటికి ఒక 15 మందిని పట్టుకున్నాము. ఎందుకు వేస్తున్నామో పెనాల్టీలు వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. దయచేసి అందరూ కూడా మాస్కులు వేసుకొని తిరగాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ। रियासत में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है और उन पर पेटी केसेस बुक किए जा रहे हैं। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जुमला 6478 केसेस बुक किए गए। पुलिस की जानब से फराहम किए गए एजाज शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 2030 केसेस हैदराबाद में बुक किए गए, जबकि रचाकुंडी में 670 और सहबाराबाद में 514 मुकदमा दर्ज किए गए। खास बात यह है कि जिले नारायणपेट में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सेमी अर्बन कहलाने वाले इलाकों में जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें रामागुंडम कमिश्नरेट 938 मुकदमात के साथ सर फहरिस्त है। वरंगल में 218, खम्मम में 131, इस्लामाबाद में 70, सिद्दीपेट में 9 और करीमनगर में 8 मुकदमा दर्ज हुए। अजला की बात करें तो संगारेड्डी में सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जहाँ पुलिस ने 349 अफराद के खिलाफ केसेस बुक किए हैं। पुलिस ने पंजागुट्टा चौराहे पर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने की मांग करते हुए भूख हड़ताल का आगाज करने से खबर ही साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव को हिरासत में ले लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो अरसे से इस मुजस्समे की तनसीब के लिए इसरार करते आ रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि उनके इस मुतालबे को न सिर्फ आवाम बल्कि तमाम सियासी जमातों की ताईद हासिल है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को दशा दिशा दिखाए सो आदमी। एक जमाने में देश आजादी से पहले बौड़ी करने नहीं जा सकते थे, छूत अछूत की बात थी, पानी पीने को मौका नहीं था, मंदिर में जाने को मौका नहीं था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिराव फूले 18th सेंचुरी में पढ़े तो ये आगे बढ़ेंगे, पढ़े तो आपकी भविष्य है। उनके नक्शे कदम पे चल के बैरिस्टर बन के इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा सो आदमी है। आज क्या हो रहा, तेलंगाना में पंजागुट्टे पे जय भीम के वर्कर्स गए 100 साल 12 तारीख के रात को स्टैचू तैयार कर लिए, सुबह तक तैयार करके रखे, तो 13 के सुबह में म्युनिसिपल कमिश्नर तोड़ने का आदेश देता है। उसके बाद हम जाके हंगामा करे तो छोटे वर्करों के ऊपर एक्शन लिए। उसके बाद मैं जाके कमिश्नर से पूछा, क्या कमिश्नर साहब ये क्या तरीका है, तुम यहाँ बैठने का कौन दिए? अंबेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखे तो तुमको ये कुर्सी पे नहीं साहब मैं मजबूर हूँ बोला। फिर बनाते बोलते नहीं, सरकार का कोई नीयत नहीं है। जब मैं ईस्ट गोदावरी जाके अमलापुरम से 5 लाख लगा के 1-1.5 महीने के बाद ला के रखे, तो आज तक गोशामहल स्टेडियम में, गोशामहल पुलिस स्टेशन में बंदी रखे भैया, किडनैप कर दिए सुबह सुबह, आज तक नहीं देते। उसके ऊपर हमारे ऊपर केसेस लगाते। फिर उनका बर्थडे आ रहा 14 तारीख को, आज 12, कल एक ही दिन बीच में। कब तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करे, बार बार पार्टी में बात करे, पार्टी के बाहर बात करे, सबसे बात करने के बाद सरकार इवन चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, मगर उनके कुछ नहीं हो रहा। उनके एमएलए नहीं बात करते, मंत्री नहीं बात करते। ये क्या का तरीका है रे भाई? अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन से असेंबली चलता, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन से लोकसभा चलता, मगर अंबेडकर को ले जाके बंदी रखे।
उग्रवादी है, देशद्रोही है, ये सोचना पड़ेगा। उसी वजह से थक गया, उस वास्ते मैं आमरण दीक्षा बनने के बाद बैठा। जब तक सरकार के तरफ से कोई बात नहीं आए, आज हर एक आदमी कोरोना से मर रहा। मैं चाहता हूँ ये मौका कोरोना के बजाय अंबेडकर के वास्ते मरे तो हिस्ट्री में मेरा नाम रहेगा। अंबेडकर अमर है। हनुमंतराव जैसा आदमी भी अंबेडकर को याद रखा, हिस्ट्री याद रखेगा, हर एक का फायदा होगा। अंबेडकर को रखना हर एक का, गरीब का, पिछड़े वर्ग का, सबका इंसल्ट है। ये यहाँ में इंसल्ट फील कर रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो वाले को पुलिस स्टेशन में रख रहे। कहाँ का तरीका? हर आदमी अंबेडकर का नाम लेता, ज्योतिराव का फुले का नाम लेता, उनको लेके बंदी कर रहे। तो इस वास्ते आमरण दीक्षा बैठा। जहाँ तक हो सके सरकार अगर वहीं पंजागुट्टे पे क्या है भाई, राजशेखर रेड्डी बड़ा है, लगो जगह खाली है, उसको निकालो नहीं बोल रहे। बाजू रखने के वास्ते भी आपको क्या एतराज है? जब तक मेरी उम्मीद चलते रहेगा। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने यशोदा हॉस्पिटल के पीछे पालमाटम पार्क में अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अफ्ताह किया। इस मौके पर मलकपेट के कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के अलावा बल्दी अहदेदारों और मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज खदीम मलकपेट में न्यू यूपीएससी सेंटर और मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर का इनाग्रेशन अमल में आया है। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब के हाथों से इनाग्रेशन अमल में आया है। ये सेंटर जो कि खदीम मलकपेट के आवाम को जो है सो सहूलत पहुँचाएगी। आने वाले दिन में डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि ब्लड टेस्ट हो या जो दूसरे अमराज हो, मरीज़ों के जितने भी जो है सो टेस्ट हो, मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर बोल के एक इनाग्रेशन यहाँ पर किया गया है। मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी कर यहाँ पर इनाग्रेशन आज अमल में आया है। मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर में बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से होगा। यहाँ पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने अपनी पर्सनल नुमाइंदगी पर पालमाटम पार्क MCH कॉलोनी में आज यूपीएससी सेंटर, न्यू यूपीएससी सेंटर और मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर, SPHO बिल्किस मैडम और ज्योति मैडम यूपीएससी सेंटर मेडिकल ऑफिसर तमाम जो है सो सदर मतबदीन के साथ यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती दवाखाने भी बेहतरीन काम कर रहे हैं आवाम के लिए। और आवाम से हमारी ये गुजारिश है कि वो कोविड वैक्सीन ले, जो कि हम भी यहाँ पर एक सेंटर यहाँ पर ला रहे हैं। हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन ले। तमाम हैदराबाद से के लोगों से गुजारिश है कि कोविड वैक्सीन सेंटर ले, कोविड वैक्सीन ले, मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस का अमल में लाएं, ताकि आने वाले दिन में ये कोविड पर कंट्रोल पा सके। हमको चाहिए कि हम सब मिलकर कोविड से लड़ें। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया। छतरी नाका के पुलिस इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल खादर जिलानी रात में अपने इलाकों में घूमते हुए आवाम को गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलने की तलकीन कर रहे हैं। कल रात फलकनुमा डिवीज़न में अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान वो आवाम को कोविड-19 के क़वायद पर अमल करने की हिदायत देते हुए देखे गए। अर्ली मॉर्निंग 1:35 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी नाइट ड्यूटी अंजाम देते हुए यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोलिंग किया हूँ। और यहाँ पे ये मालूम हुआ कि हर एक गली में नौजवान बच्चे बिना आराम किए चबूतरों पे बैठे हुए हैं। और इससे पहले भी जो है कई किस्म के कंप्लेंट्स आ चुके हैं यहाँ पर कि नौजवान बच्चों की वजह वो बैठने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स मुब्तला हो रहे हैं वो लोग। और उनके वजह से जो है दूसरों को, आम बाशिंदों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा। तो यहाँ पर मूवमेंट करके देखे, सभी लोगों को समझाए, काउंसलिंग किए हैं
कि गैर ज़रूरी बाहर नहीं फिरना है और अपना वक्त ख़राब नहीं करना है। और ख़ास करके ये कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान अपना ख़ास ख्याल रखें और अपना ही ना हो के दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि मास्क का इस्तेमाल करें और किसी को भी जो है कोई भी जो है कोविड के गाइडलाइंस जो हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी सेहत को ठीक तरह से देख लें। सर, जो आए दिन देखने में आ रहा है कि यंगस्टर जो है शराब नोशी गांजा नोशी कर जो है गैर ज़रूरी पेट्रोलिंग कर रहे हैं एरियो में, तो उनके लिए कुछ मैसेज आपके लिए? नहीं, मैं नौजवान तबक़ात को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना जो वक्त है उसको गैर ज़रूरी कामों के अंदर, गैर ज़रूरी आदतों के अंदर मुब्तला ना करते हुए कोई अच्छा काम करें, या तो पढ़ लें या तो इबादत करें या फिर कोई दूसरा काम करें। दिन में सो रहे हैं आप 2 बजे तक, दिन में दोपहर के 2 बजे तक सो रहे हैं और रात में जो है सुबह 4 बजे तक आप जागे हुए हैं, तो कोई उससे कोई फ़ायदा है ना हासिल है, ना ख़ुद के होते ना किसी और के होते। एक शादी नहीं हुई बोले तो माँ बाप परेशान, शादी हो गई बोले तो बीवी परेशान। वो सारी परेशानी लेके आके फिर से वो हमारे पास ही आना पड़ता, पुलिस स्टेशन के पास ही, साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है बोल के पुलिस स्टेशन के पास ही आना पड़ता। तो मैं सभी नौजवान से ये दरख्वास्त करूँगा कि गैर ज़रूरी के अपना वक्त, कीमती वक्त को ज़ाया ना करें और एक टाइम टेबल के हिसाब से अपना एक निज़ाम बना लें, जिसकी वजह से अपना सेहत और काम, अमल रोज़ी जिसको बोलते हैं, अमल रोज़ी, रोटी रोज़ी अलग होती, अमल रोज़ी अलग होती। तो अमल करते हुए, अच्छे कामों पे अमल करते हुए, कीमती वक्त ज़ाया ना करते हुए, पुलिस को गैर ज़रूरी के ना सताते हुए, आम बाशिंदों को ना सताते हुए, अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको ठीक तरह से अमल करें, ताकि दुआओं में रहें, अपने वालिदैन के, अपने घर वालों के, अपने आसपास के लोगों के, सबके दुआओं में रहें, तो ख़ुद ब खुद ठीक रहेगा, सेहत के लिए भी ठीक रहेगा और समाज के लिए भी ठीक रहेगा। सर, ये विदाउट मास्क के जो फिर रहे हैं बाहर, तो उनके लिए आप लोग चालान कर रहे हैं कैसा, नाइट में भी, या फिर जो है लोग को क्या? नहीं, वो चालान तो कंपलसरी है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज़ गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस to book cases on the violators of COVID-19 guidelines। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वो एक्ट के तहत क़ानून है, क़ानून के तहत उसका एक्शन लिया जाएगा, ज़रूरी है। पहले तो हम सबको जो है काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई आप मास्क के बग़ैर ना रहें, बल्कि काउंसलिंग तो कर रहे हैं, बट अगर नहीं सुनने की सूरत में कंपलसरी उसको लगाना पड़ता, केसेस लगाना पड़ता। चंदनगुंटा पुलिस स्टेशन हुदूद के तडलाकुंटा में चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें 20 तोले सोना और 10 था 12 तोले चांदी और 30,000 रुपए नगद और घर के पेपर्स का सरखा कर लिया गया। क्लूज टीम एडिशनल डीसीपी रामना रेड्डी, चंदनगुंटा एसआई गौस खान और एएसआई सीतापति राव ने मुकाम वारदात का दौरा किया। चंदनगुंटा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। हम 2 बजे हम लोग यहाँ से घर से गए हुए थे फंक्शन में, 9 बजे के बीच, 2 और 9 बजे के बीच में आने के बाद में 9 बजे मैं ही आई थी घर को। आने के बाद में गेट का लॉक टूटे हुआ था, अंदर आके देखे तो पूरे लॉक टूटे हुए थे। सोना चोरी हो गया हमारे घर से। कितना सोना था मैडम? सोना देखिए हमारा 20 तोले के करीब था सोना। और कुछ गया? 30,000 कैश था, वो कैश चले गया, और 15 तोले चांदी थी, सिल्वर। आपको इत्तला पैसा मिली? मैं खुद आई घर को, मैं मेरा लड़का आने के बाद में हमको पता चला कि लॉक पूरे टूटे हुए थे, हमारे घर के लॉक के साथ ही गायब है पूरा टूट के। आप आने के बाद क्या करें? मैं आने के बाद में खोली, बाहर का लॉक देखे तो क्या है, लॉक ही नहीं है, बाहर गेट पे लॉक नहीं है। फिर अंदर आके देखी तो अंदर भी लॉक नहीं है। फिर पुलिस में इत्तला दिए हम लोग के, ये दे के बोले कि हमारे को ऐसा चोरी हो गई, बोले तो
पुलिस वाले भी आए थे, ECP साहब सब आए थे, फिंगरप्रिंट्स लेके गए। हम सबसे गुजारिश कर रही अकबर साहब से, अवीसी साहब से, अकबर साहब से, अवीसी साहब से सबसे गुजारिश है कि हमारा जो नुकसान हुआ हमको मिल जाए। बहुत परेशान है हम लोग, बहुत परेशान है। KCR साहब से भी गुजारिश है हमारा जो नुकसान हुआ मिल जाए। हम लोग बहुत परेशान है, सलम एरिया के रहने वाले हम लोग। ज़रा सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमारी मेहरबानी करके हमारी मदद करिए आप लोग सब। ECP साहब से भी गुजारिश है कि हमारा मदद करे तो जल्द से जल्द मदद करिए। रमज़ान का महीना है एक तो आने वाला, लॉकडाउन से अलग तरफ हम लोग परेशान है बहुत, समझे। सबसे गुजारिश है कि हमारी मदद करिए जल्द से जल्द। दरगाह शाह खामोश नामपल्ली के पास किराने की एक दुकान में सरके की वारदात पेश आई। सारिकीन किराने का सारा सामान और 5,000 रुपये की नकद रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस हबीबनगर मसरूफ़ तहकीकात। मेरे शौहर की दुकान है, किराना शॉप है, छोटी मोटी दुकान है भाई, ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, मगर उसमें से भी 5-6 हज़ार कैश ले लिए, फिर थोड़ा बहुत सामान ले लिए, सब चोरी करके खाली करके चले गए। ऐसी बदमाशी चल रही। यहाँ के महल्ले वाले थे, देखे दिखाए सो लोग हैं, करे सो है। इससे पहले भी करे थे, ऐसी हमारे जेठ चलाते थे। जब गए 100 साल पड़ोसी में हुई, अब हमारे पास हुई। देखो छोटी मोटी दुकान है हमारी, ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, वो उसमें भी ऐसा करके चले गए। ये ऊपर खिड़की थी, वो खिड़की तोड़ के अंदर जाके करे सो है। हमारे को दरवाज़ा वो सब सेफ है, मालूम नहीं हुआ कैसा करे। हाँ महल्ले में छूंगे भाई, चोरा बहुत है यहाँ के। PS वाले पहचानते कौन कौन चोरा है, सो उन लोगों को मालूम है, उन लोग करे सो है ऐसा। अब हमारे को तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है कि कुछ भी करो, हमारा माल हमारे को दिला दिए तो बस है। मेहरबानी होती है आप लोगों की अगर दिला दिए तो। भोंगीर के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने तरक्की के मामले में जिले नलगुंडा को नजरअंदाज कर देने का TRS हुकूमत पर इल्जाम लगाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अपने फार्म हाउस पर आराम करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि नलगुंडा खासकर उनके पार्लियामानी इलाके में श्रीशैलम से पानी सरबराह करने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत की वजह से जिले के किसान परेशान हैं। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में एक 40 साल शख्स डॉक्टरों की लापरवाही के सबब फौत हो गया। बताया जाता है कि कृष्णा गौड़ को लिम्स हॉस्पिटल में घंटों इंतजार के बाद दूसरे दवाखाने को ले जाने की नौबत आई, लेकिन अलमिया ये है कि एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था। कृष्णा गौड़ के लवाकिन ने एम्बुलेंस ड्राइवर का लाइसेंस मनसूख करने और दवाखाने के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दवाखाने का हाल ही में इफ्तिताह अमल में आया था और यहाँ कई दरकार सहूलतें मौजूद नहीं है। వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ బెడ్ మీద పడుకోబెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నా మాకు డౌట్ వచ్చి ఏమన్నారంటే మావాడే అడిగింది మా బామ్మడిని కూడా, అయితే హాస్పిటల్ కొత్త హాస్పిటల్ కదా సార్ ఇది, అన్ని ట్రీట్మెంట్లు ఉన్నాయని అన్నది. అంటే అన్ని ట్రీట్మెంట్లు ఉన్నాయి, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాదే హాస్పిటల్ శంషాబాద్లో ఉంది, శంషాబాద్ హాస్పిటల్కి పంపిస్తామని అన్నారు. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇక్కడ కాని పక్షంలో శంషాబాద్ పంపిస్తాం కానీ మొత్తం మాతో అవుతుంది ఇక్కడ అని అన్నాడు. సరే అన్నాడు. సరే అంటే బిల్లుల గురించి చెప్పింది. 5,000 కట్టూరు ముందు అని అన్నది. సరే అని వచ్చి 5,000 కట్టినాం. 5,000 కట్టమని డాక్టర్ చెప్పొద్దంట, అయినా కానీ డాక్టర్ చెప్పింది. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళు చెప్తారు, డాక్టర్ అనేది చెప్పాడు, అయినా కానీ చెప్పిండు ఆయన. 5,000 కట్టమంటే సరే అని కట్టినాం. మళ్ళీ మెడిసిన్ బిల్లు కట్టమంటే 2,000 అది కట్టినాం. మళ్ళీ ఇంకో 5,000 అది వెంటిలేటర్లు పెట్టాలి, పైప్ వేయాలి లోపలికి అని అన్నది. లోపలికి పైప్ వేయాలన్నప్పుడు దానికి 5,000 కట్టమంటే దానికి 5,000 కట్టినాం. 5,000 కట్టిన తర్వాత లోపలికి అవి ఇవి సామాన్లు తీసుకుపోతున్నారు, అక్కడిక్కడ తిరుగుతున్నారు, వస్తున్నారు, పోతున్నారు. మొత్తం టాకుర్ సినిమా లెక్క అయిపోయింది. ఆ విధంగా చేసిర్రు, అక్కడిక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసిర్రు. చేసిన తర్వాత ఒకడు వచ్చి అది బిల్లు కట్టుకున్నాడు పైన వచ్చి, ఇక్కడ కొన్ని సర్వీసులు లేవు అనేసి మా బొమ్మడికి చెప్పినట్ట. కొన్ని సర్వీసులు లేవు, మీరు వేరే హాస్పిటల్కి హైదరాబాద్ తీసుకుపోరు అనేసి మా బొమ్మడికి చెప్పినట్ట. ఆయనకు చెప్పేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చింది. అప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చి నేను అప్పటిదాకా కూల్గానే ఉన్నా. అయితే ఇంకోడు దాంట్లో అటెండరా డాక్టరా ఇంకోటి వచ్చి ఇక్కడ దగ్గరలో శంషాబాద్ తీసుకుపోతే దానికంటే దూరం అవుతుంది, దగ్గరలో నవీన్ హాస్పిటల్ అమ్మ హాస్పిటల్ ఉంటుంది, ఆడికి తీసుకెళ్ళండి అని పక్కోటి చెప్పిండు. ఆ డాక్టర్ ఎవడు అనేది వాడికి తెలియదు నాకు. అయితే సరే అనేసి అన్నాడు మావాడు. సరే అనేసి ఒప్పుకుంటుండు. నాకు అప్పటికే డౌట్ వస్తుంది, వీళ్ళు ఇంతసేపు ఆక్సిజన్ లెవెల్ 35% ఉంది, దాని గురించి కూడా ఇంప్రూవ్ చేసారు, మాకు చెప్పారు 35% ఉంది, ఇది 90+ ఉండాలి, 90+ ఉంటేనే మనిషికి ఇబ్బంది ఉండకుండా మంచిగా ఉంటాడు అనేసి అని అన్నారు. సరే అనేసి మళ్ళీ పక్కన ఉన్న ఒక అటెండర్కు అది ఆక్సిజన్ లెవెల్ అది పెట్టి చెక్ చేయించి ఆయనకు 97 ఉంది, చూడు ఈ లెవెల్లో ఉండాలి, ఈ లెవెల్లో 35% ఉంది,
ఈ 35% ఉన్నందుకు మేము క్యూర్ చేస్తాము, 80% వచ్చేదాకా బాధ్యత మాదే, మేము క్యూర్ చేసి మేము బాగా చేస్తామని అన్నారు. అయితే మళ్ళీ కేస్ షీట్ తయారు చేసారు, ప్లస్ ఇంకోటి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అయితే మా బాధ్యత ఉండదు అన్నట్టుగా అది లెటర్ రాస్తారు కదా, ఆ విధంగా దాంట్లో ఏం చేసారు, హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అది ఏదేదో కొన్ని రాసిరు దాంట్లో. रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी मुस्लिम मुलाजमीन को माह रमजान के पेश नज़र दफातर से घंटा कबल घर जाने की इजाज़त दे दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तरफ से इस सिलसिले में तमाम मुकम्मजात के सुदूर के नाम हिदायत जारी कर दिए गए। इसका इतलाक 1 रमजान से होगा। मौके में बीसी वेलफेयर ने पुलिस की मदद से अतापुर राजेंद्र नगर में एक इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया, जो कि वी वेंकटेश नामी शख्स गैर मजाज तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। वेंकटेश ने वड्डर तबके की फलाह बहबूद के प्रोग्राम शुरू करने के मकसद से ये इमारत हुकूमत से हासिल की थी। पुलिस ने इंतजामी कार्रवाई में मदाखलत पर वेंकटेश और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया, फिर उन्हें पुलिस राजेंद्र नगर मुंतकिल कर दिया। అదే వెంకటేష్ గారు ఇది వడ్డర్ సంక్షేమ సంఘం కట్టడానికి అలాట్ అయిన ల్యాండ్ అండి ఇది. కానీ వెంకటేష్ గారు ఏం చేశారు, ఆయన సొంత ప్రయోజనాల కోసం ఆయన కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నాడు. వడ్డర్ సంక్షేమ సంఘం అండ్ బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ కూడా దీంట్లో 2 కంబైన్డ్గా నిర్మించాలని మా వెల్ఫేర్ ఆలోచిస్తుంది. అంతలోకి వెంకటేష్ గారు ఇలా అక్రమ కట్టడాలు కన్స్ట్రక్షన్ చేసిండ్రు వితౌట్ మాకేం నోటీస్ లేకుండా. దానికోసం మేము గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు పర్మిషన్ తీసుకొని మేము అక్రమ కన్స్ట్రక్షన్స్ కూలగొట్టడం అయిందండి. ఇది వడ్డర సంక్షేమ సంఘం కమ్యూనిటీ హాల్ వడ్డర సంక్షేమం కోసం వాళ్ళ కోసం నిర్మించబడాల్సిన ప్లేస్ సొంత ప్రయోజనాల కోసం వెంకటేష్ వాడుతున్నాడు. అది मौके में मौसमियात आइंदा 2 दिन के दौरान बशमूल हैदराबाद कई इलाकों में घन गरज के साथ बारिश की पेशकशी की है। इंडियन पेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर के नागरत्ना ने बताया कि हैदराबाद में इतवार को दर्जे हरारत 34.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 3 डिग्री कम था। उन्होंने बताया कि मेदक, निजामाबाद और महबूबनगर में 14 अप्रैल तक दर्जे हरारत में कमी रहेगी। तेलंगाना में एक ही दिन में 2251 केसेस के इजाफे के बाद रियासत में खौफ व सरासमगी की लहर पाई जाती है। मौके में सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 6 अमवात भी हुई हैं। इसी मुद्दत के दौरान 69,000 से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ सरकारी दवाखानों और अर्बन हेल्थ सेंटरों में कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जाने का काम जारी है। जीएचएमसी हदूद से सबसे ज्यादा 355 केसेस सामने आए, जबकि मेडसर मलकाजगिरी में 218 केसेस रिपोर्ट हुए। जिन दीगर अजला से भारी केसेस मंजरेआम पर आए हैं उनमें निजामाबाद के 244, रंगारेड्डी के 200, जगत्याल के 117 और संगारेड्डी के 132 केसेस शामिल हैं। आलम इस्लाम बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी और गम गुस्से के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और गैर मामूली इक़दाम करते हुए उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदर नशीन वसीम रज़वी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें उस मलून ने कुरान मजीद की मखसूस 26 आयात को इस मुक़द्दस किताब से हज़फ करने की मांग की थी। जस्टिस आरिफ नरीमान की ज़ेर-ए-क़यादत बेंच ने, जिसमें जस्टिस BR गवाई और हरिकेश रॉय भी शामिल थे, मलून वसीम रज़वी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। बेंच ने वसीम रज़वी के वकील RK रायज़ादा से इस दरख्वास्त पर इसरार करने के खिलाफ वार्निंग दी, लेकिन वो बदस्तूर इस वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए अदालत में अपनी मांग जारी रखा था। चुनांचे अदालत ने वसीम रज़वी का मुंह काला कर दिया। मुंबई की रज़ा अकेडमी के बानी मौलाना सईद नूरानी ने इस दरख्वास्त को खारिज करने की रिट भी दाखिल की थी। वसीम रज़वी का कहना था कि कुरान मजीद की आयात से मुल्क की सलामती और यकजहती को खतरा लाक है। वाज़ेह है कि कौमी अक़लियती कमीशन ने भी गुज़िश्ता माह वसीम रज़वी को नोटिस जारी करते हुए इस दरख्वास्त से दस्तबरदार होने और मुसलमानों से गैर मशरूत माजरत खाई करने की हिदायत दी थी। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10.
Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.